मन चलिया बहरूपिया मन चलिया. Hello everyone. Hi, this is Rahul. I'm your Filmy Bania, and it's good to see all of you. Today is a very, very special episode for our podcast. We are being joined by the true eminence of somebody who can be considered as a professor on the subject of genre of espionage, international politics, geopolitics, I would say patriotism, action, and a gentleman who has so many feathers in his cap, including special ops, Naam Shabana, Ahista Ahista, he directed many years ago, and now the critically acclaimed show which is making waves across the airwaves, which is the show called Mukhbir on Z5. Yes, ladies and gentlemen, I'm pleased to welcome Mr. Shivam Nair live from Bombay. And Shivam sir, this is Rahul Gupta. Namaskaram, and thank you so Namaskaram. much for coming. Thank sir. you. Thank you. Thank you. Thank you. Great, sir. So, sir, how's it feeling? How is it sinking in? How's the show done? Are you getting rave reviews? Yeah. Everyone is liking it, and they are giving different views of theirs. And I think we create the characters and the era. I think that's reaching to the audience. Wow, fantastic, sir. Yeah. Sir, but sir, before we get into Mukhbir, we want to know more about Shivam Nair, the man, and where he's from, what has been doing. I remember we were connected by Bhanu Singh Jasrotia, and he was talking about that you've spent a lot of years working through working through the ranks, understanding the industry. Please tell us about yourself. Where are you from? Basically, I'm from Kerala. Wow. And I studied in Bihar. My father was there. I studied in Bihar, Jamshedpur, Ranchi. Now it's called Jharkhand state. And so cinema was my fascination to watch lots of Bollywood films. And I thought of coming to this industry, become an actor. And later realized I can't be an actor. Then I thought of what to do. Then thought of the direction. तो बेसिकली क्या है, ये सोच के तो आ तो जाते हैं आप, ग्लैमर स्टक होके आते हैं कि कुछ पाना है, कुछ लेना है, अपने पास स्किल है नहीं है, कुछ मालूम नहीं, राइट. एंड वी अराइव्ड, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे. दे स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम कंफ्यूजन में चलता है और या एम्बिशन को पकड़ के चलता है, दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ. तो फिर फाइनली वी स्टार्ट काम करना शुरू कर दिया. काम से असिस्टेंट का काम किया, फिर एडिटिंग का काम किया, फिर प्रोडक्शन में काम किया. तो इस तरह करते काम चलता रहा. लेकिन क्या होता है, फिर आप थोड़ा क्राफ्ट से जाते हो, थोड़ा कुछ काम करने आता है, लेकिन you don't know about yourself. It's all about you have to tell something, you should have a voice to tell. एक्सप्रेस करने की मीडियम है ना ये. तो हम लोग कहानी देख सुनते हैं. हाँ, फिर chaos लाइफ चलता है, फिर सर्वाइवल चलता है. तो आपको लगता है आप इंडस्ट्री में हो के भी नहीं हो. और some people जो और बेसिकली आई एम नॉट अ स्टोरी राइटर. तो मेरे बहुत सारे राइटर्स थे, जो फ्रेंड्स राइटर्स हैं बहुत सारे, जैसे अनुराग कश्यप, इम्तियाज या विशाल, श्रीराम राहुल, ऑल दिस फ्रेंड्स, वो लोग बेसिकली दे आर राइटर्स डायरेक्टर. तो मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू में देता था. मुझे लगता था कि यार पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूँ, आई आल्सो नो द राइटिंग, बट आई नेवर स्टार्ट राइटिंग इनटू दैट. और जो फिल्में पहले बनाए, आई नेवर रोट इट. someone else given me the script, I made the film. Whenever I wrote something, it never happened. तो ये चलता रहा. फिर उस फ्लो में चलता रहा. और व्हेन द 2 years जो कोविड का टाइम आया ना, 2 साल जो बंद रहा, काम धाम नहीं था, तो ये सोचा कि मैं क्या किया अभी तक. हमने कुछ भी नहीं किया. हमें कुछ मालूम ही नहीं अपने बारे में कि क्या बोलना है, क्या करना है. और काफी उस वक्त वेब सीरीज देखे, फिल्में देखे, तो समझ में आ गया स्टोरी तो एक पॉइंट पर खत्म. देयर इज नो स्टोरी. अब इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स नाउ. हर इंसान की अपनी कहानी है ना. तो मुझे लगा कैरेक्टर को स्टडी करो, उसकी कहानी बोलो. वेब इज द बेस्ट मीडियम टू टेल द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि नॉवल जैसा है, हर का चैप्टर अलग अलग है. तो फिर ये मुखबिर का ये जो बुक है, मिशन टू पाकिस्तान बुक आया, और जी ने राइट्स ली हुई थी और इस पे बनानी थी, फिल्म सीरीज बनानी थी. तो मुझे आइडिया अच्छा लगा. फिर हमारी एक टीम है पूरा, जिसमें शुरुआत हुई थी. असीम अर्रा इनिशियल डेवलपमेंट पे था. असीम अर्रा इनिशियल स्टोरी बनाया, सौरभ सामने आकर फाइनल स्टोरी और एक डिजाइन किया. साजिद अली भी इन्वॉल्व रहा. बहुत सारे राइटर्स आए. फिर करण ओबरा आया, जयप्रद डायरेक्टर जो
हमारा को डायरेक्टर वो इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद अरशद सैयद आया, ये सारे मिलकर स्टोरी स्ट्रक्चरिंग में काम किया। और हम लोग, मेरा बेसिक इंटरेस्ट ये था हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एनहांस करना, हर इंडिविजुअल कैरेक्टर के एक आर्क बनाना। मेन प्लॉट तो हमें पता ही था, राइट। तो वो राइटिंग में जो हमने जो डाले 4-5 महीना डाले हम लोगों ने, वो 4-5 महीना, क्योंकि वो कोविड का टाइम था तो किसी को पता काम था ही नहीं, यही हमारी डिस्कशन थी। तो फुल्ली इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, सबका एक फोकस था एकदम। तो ये सारे लोग ऐसे नहीं कि ब्रिलियंट लोग हैं, सारे लोग एवरेज लोग हैं, लेकिन वो इनपुट इसलिए आया बिकॉज उनकी फोकस एक काम की तरफ पड़ा। और फाइनली एडिशनल राइटिंग के लिए वैभव मोदी आया, ये वो डायलॉग लिखा है बाद में, उन्होंने डायलॉग्स लिखे वैभव, और लिरिक्स भी उसने लिखे हैं। तो वो नेक्स्ट लेवल पे जो काम हुआ, नेक्स्ट लेवल पे स्टोरी बढ़ी, उनकी जो डायलॉग राइटिंग आई और लिरिक्स लिखाया गया, उसमें चीजें शार्प हो गई और कैरेक्टर्स का लेयरिंग के साथ बहुत कुछ सब टेक्स्ट उसमें आ गया। तो पूरी टीम भाई, उसमें करण ओबराय हो, सौरभ स्वामी हो, या वैभव मोदी हो, या अरशद सैयद हो, सारे लोग का इनपुट इस राइटिंग लेवल पर रहा है, तब जाके प्रोजेक्ट वहां पे पहुंचा है। वाओ, तो ये मतलब दिस इज like a story of your life. You have been, you know, so sir, how long now in the film industry? Yeah, around now it become 30 years. Wow, Yeah. 30 years, my Yeah. God. But 30 years में क्या रहा ना, आपको समझ अब आया कि भाई क्या करना है आपको, वो पता नहीं चलता। आई फील वेरी सी द थिंग, लॉट्स ऑफ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म में आ जाते हैं, उनको पता, बहुत कम लोगों को पता रहता है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। सपने सबके पास है। But sir, what I've realized is जो ये genre है आपका, जो expertise है, ये geopolitics, espionage, you know, international conspiracy theory, terrorism, इसको बहुत एक ब्रवाडो से तो बहुत लोगों ने किया पहले, लेकिन कभी भी ये लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, जैसे एलन जे पक्यूला, जॉन फ्रैंकनहाइमर, ये जो लेजेंड्स हैं हॉलीवुड के जिन्होंने ऐसी फिल्म्स बनाई हैं, वो फिल्म्स एसेंशियली मतलब एक लेयर बाय लेयर स्टोरी होती थी। So even if we look at Mukhbir as a person who does podcasting and critiquing, sir, what I saw is the subject of India-Pakistan is known. पता है सब, 50 चीजें, और sir, with all due respect, since 2014 कुछ ज्यादा ही एक, you know, we are पाकिस्तान का चाहे मैच हो, चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, it's always in the news. But I think आपने एक ऐसे ईरा को टच किया है जो ईरा पहले फिल्म्स और टेलीविजन में, which is the 1960s of India-Pakistan, when actually at that time I was just doing a little bit of my own research. That time Pakistan was actually booming as an economy at that time. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। It's one of those periods when they were actually getting it right. बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए, तो इंस्पिरेशन कैसे आया, ये कहानी हमें बतानी है, मतलब कुछ एक आपको लगा होगा कि भी ये मेरे को करना है स्टोरी, कोई क्या पुल था आपको लगा? क्या, हाँ, तो एक तो देखिए, एक तो वजह यह था कि जब हम हमारे अर्ली ईयर्स में जो हमने फिल्में देखे हैं, जो उसमें एक ऑनेस्टी फिल्म हुआ करता था, जो आज मैं जाके फिर वो पिक्चर रिविजिट करता हूँ ऑल द फिल्म, तो हमें उसका एक सिंपल और ऑनेस्ट पिक्चर दिखता है। तो ये कहानी मुझे लगा यार हम रिविजिट कर सकते हैं, अपने आप को चाइल्डहुड में लेके फीलिंग लेवल, नॉस्टैल्जिक लेवल पे आप वहां रिविजिट कर सकते हो। तो दैट वाज द वन रीजन, ठीक है। तो आपको रिमेम्बर उस जमाने की फिल्म आपको याद रहती है यार, इतनी सिंपल स्टोरी टेलिंग, बट होल्ड करता है, कैरेक्टर्स होल्ड करता है, म्यूजिक होल्ड करता है, एक अपना पेस है उसका, राइट। तो एक तो वो था। दूसरा ये बात मालूम था कि भाई उस समय जब हम अलग हुए, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी कहाँ था और हम किस तरह हालत में थे, और आज हमारी सिचुएशन कहाँ पहुंच चुकी है। तो मेरा ये भी था कि आज के यूथ को पता चले भाई वहां से हम निकल के यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो जर्नी है ना, जर्नी हम बिहार, अभी भी लड़ाई चल रही है, कश्मीर की लड़ाई चल रही है, बट बाकी इकोनॉमिकली हमारी पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, और यूथ एजुकेशन हर चीज में हम बदल चुके हैं, काफी आगे आ चुके हैं ना। तो मेरे को लगता है कहानी कन्वे करना था यूथ को भी, देख के ना हमारी एक हिस्ट्री के बारे में थोड़ी समझ में आ जाएगा, मतलब स्टोरी टेलिंग के साथ साथ। दैट वाज द रीजन। Okay, storytelling, and it's like a very linear reason you have had. And लीनियर नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, ये पहले हमने इसको स्ट्रक्चरली नॉन लीनियर किया था। मैं आपको बता दूं ट्रुथ, नॉन लीनियर, ये चैनल की मैं बहुत तारीफ करूंगा ZEE5 को, इसमें प्रगति और रोहित दोनों को बोलूंगा मैं, और इंक्लूडिंग निमिषा पांडे, क्योंकि वो फ्रीडम कंप्लीट दिया था। हमने जो स्क्रिप्ट जो लिखी थी पहले नॉन लीनियर था, अच्छा, और नॉन लीनियर लिखने के बाद उसी को शूट भी हमने करा, शूट भी नॉन लीनियर किया। फिर मुझे एडिट पे आने को लगा ये वर्क नहीं कर रहा है, हमें लगा बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं स्टोरी का, जो
आप बोल रहे हो ना, जो सिंप्लिसिटी, जो इराक का सिंप्लिसिटी हम गलत कर रहे हैं। तो मैं उनको बोला देखो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है जिसको री वापस रिवर्क करूंगा और नए तरीके से एडिट करूंगा मैं। तो उन्होंने ना वो फेथ रखा हमारे ऊपर और एग्री किया, ये लोग जी वालों ने, और हमारे प्रोड्यूसर ने भी एग्री किया, सबने एग्री किया। फिर मैंने फिर अनदर 1.5-2 महीना लगा उसको एक नया ड्राफ्ट क्राफ्ट करके पूरा ये लीनियर नैरेटिव बनाने में। ये हमारा लीनियर तब जाके ये बनी है। तो हमें लगा अब कहानी गट लेवल पे लगता है कहानी वर्क कर रहा है, कैरेक्टर्स वर्क कर रहे हैं, सबके आर्क वर्क कर रहे हैं। अब लगता है कि सही किया हमने, ऐसा फीलिंग है। वेरी गुड सर। एक और चीज इसके अंदर जो आई थिंक समथिंग व्हिच इज रियली स्टैंडिंग आउट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इज दिस होल स्कोर ऑफ न्यू एक्टर्स। या I mean, so Zayn के बारे में I was doing a little research. So he was in Bell Bottom playing that Manjeet character. राइट राइट। So I was just trying to understand. ने या कैसे कास्ट किया उसको ना, राइट। तो हुआ ये, मैं बता रहा हूँ, साजिद वन ऑफ द को डायरेक्टर मेरा इस सीरीज करने वाला था, साजिद अली, इम्तियाज सेंगर ब्रदर। तो साजिद ने इनका नाम सजेस्ट किया था, और उसके बाद साजिद को अपनी फिल्म में लैला मजनू में शायद इसको लीड कास्ट करने वाला था, समवेयर नहीं हो पाया। साजिद ने मुझे बोला कि ये बंदा सही लगेगा आपको इसके लिए। फिर उन्होंने, हमने क्या किया, इसको ऑडिशन किया, हमने मिला नहीं, पहले ऑडिशन किया उनको। ऑडिशन जब आया तो मुझे लगा ये तो सही बंदा यार, इसको कास्ट करना चाहिए। ओके, देन पर्सनली जब मिला तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं बोला यार, जिसको मैंने क्लोजअप पे उसको ऑडिशन किया था मैंने, जब उसको उसमें बहुत अच्छा लगा, जब पर्सनली मुझे जब मिला उसको तो मुझे लगा यार ये बड़ा थोड़ा बिल्ट बनाया हुआ बंदा है, कास्ट करूँ ना करूँ, दुविधा में आ गया, डिलेमा में आ गया कि करूँ कि ना करूँ। और मैं उसको बोला नहीं, मैं प्रोड्यूसर को बोला यार ये गलत आदमी कास्ट हो रहा लग रहा है, लेकिन विल टेक 2-3 मीटिंग और करते हैं। फिर 2-3 मीटिंग किया। जब मीटिंग करने के बाद मुझे लगा ये जो बंदा है ना, इसके अंदर में एक स्पिरिट है, वो बड़ा स्पिरिचुअल है बंदा एकदम। तो मुझे उसे बात, हाँ वही रीजन है, पहला ऑडिशन और बाद में जो कनेक्शन, इंटरनल कनेक्ट हुआ, तो उसके साथ चलते हैं। फिर वो कॉल लिया गया, फिर हमले ने थोड़ा रीडिंग किया, थोड़ा वर्कशॉप किया, और मैं देखा उस एक्टर को ग्रो होता हुआ। विल द शूटिंग, पहली दिन की शूटिंग और एंड डे तक आते आते एक्टर बन गया था पूरा। ये प्रकाश जी बोलते हैं, प्रकाश राज भी ये बात बोलते हैं कि फर्स्ट दिन शूटिंग में जब उसको मिला जैन को, और एंड डे में जब आया क्लाइमेक्स शूट करे, तो सामने एक मतलब एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो उनका भी बयान है। सर आपका इस सब्जेक्ट एरिया में इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं नहीं, ये भी हाँ जी बिल्कुल, आप सवाल की अगर मैं आपका सारा करियर देखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पॉपुलर शो हमारे ग्रुप्स में इज स्पेशल ऑप्स। दैट्स लाइक up there, you know, nobody can even challenge the, I mean, look at the scale, the grandeur, where it is, how it can be, you know, अगर आप देखो वो that is like, you know, really high quality Mission Impossible level एक आपने चीज बनाई। बट सर मेरा ये है कि ये एक ना कहीं आपको ये इंस्पिरेशन जो आती है, जो आप इन्हीं जॉनर को बार बार बोलते हैं अलग अलग अपनी कहानियों के थ्रू, उसके अंदर मतलब एक होगा ना, ये पैशन है ये मेरा, यू नो, दिस इज लाइक योर पैशन। बिकॉज इफ आई सी इट इज, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जॉन ग्रिशम के नॉवेल्स हैं, वो कोर्ट रूम ड्रामास होते हैं। करेक्ट। अगर आप माइकल क्राइटन के नॉवेल्स देखिए, वो एडवेंचर और कंस्पिरेसी थियरी पे होते हैं। राइट। तो इवन नाउ जैसे अमीश इंडिया में वो रिलीजन और गॉड्स के अराउंड अपनी स्टोरीज, माइथोलॉजी के ऊपर करते हैं। सो व्हाई इज दैट शिवम नायर इज सो डीपली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट एरिया? नहीं देखिए, सब्जेक्ट आया नेचुरली। क्या होता है ना, हमने इसके पहले ना डार्कर स्टोरी की, क्राइम स्टोरीज, लाइक एपिसोडिक बिल्ला रंगा और ओटो शंकर, जो हमारी शुरुआत वहां से हुई थी। एक्चुअली हमें पसंद है सिंपल लव स्टोरीज, ठीक है, करना पसंद वो है, लेकिन हमारे पास कहानियां पहले कर रहे आई थी, जो सीरियल किलर पे कुछ स्टोरीज हमने की है शुरू में। उसके बाद खास करके स्पाई वाली जो बात में है ना, वो शुरू हुई नाम शबाना से, जब नीरज मेरा पुराने दोस्त है और नीरज का राइटिंग मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसकी एक डिसिप्लिन है काम करने का तरीका उसका, और उसकी ग्रुप के साथ काम करके बहुत मजा आता है। नाम शबाना जब आया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम स्पाई एरिया में हमने घुसा, तो वो लिखा उसने था। तो हम, हालांकि इस तरह की फिल्म मुझे बहुत पसंद है, तो वो एक बार वो हमने नाम शबाना की, उसके बाद स्पेशल ऑप्स में नीरज ने लिखा था, तो नीरज ने वालों को डायरेक्टर चाहिए था, हम मिले, फिर उसकी जर्नी वो अलग स्केल पे प्रोजेक्ट चला गया।
देन उसी वक्त में ये स्टोरी आया, ये मिशन टू पाकिस्तान। ये सोच के नहीं किया, वो आ रहा है, वो आ रहा है तो हमने ले ली, चलो ये कहानी से रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो इस प्रोसेस से बाहर निकला। अब मुझे लग रहा है, अब जैसे आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है टाइपकास्ट होने जा रहा है, निकलना चाहिए, ऐसा लगता है इस एरिया से। Okay, sir, I'm getting now questions from fans. हाँ जी, First question is by our viewer Rajat Singhal. हाँ His जी। question is, will there be a second season to Mukhbir? Definitely it will happen second, पक्की बात है, पक्की बात है। Fantastic. Yeah. Sir, so this is quite interesting. And sir, we have another question on this is by Paritosh, our one of our old fans and viewers, Paritosh Ladhani. His question is, what are the influences of your filmmaking? आप किन filmmaker से inspire होके कहानियां बनाते हैं, global level पे और national level? जी, India. global level पे my favorite is Martin Scorsese। Martin Scorsese, of course. Yeah, इंडिया में आता हूँ तो my influence राज कपूर। Wow, that's like classic I'm old a school. big fan of Raj Kapoor, और I have lots of research material to make a documentary kind of thing on Raj Kapoor, but I've not started, but I will make it. Okay, sir. Sir, there is another question which is from our viewer Anshuman. His question is that how do you challenge balancing of facts and fiction when it comes to TV shows? Because हम जब भी real incidents के ऊपर कुछ भी बनाते हैं, Yeah, तो उसमें से कुछ हिस्सा होता है जो fictional है, कुछ बिल्कुल dramatized है और कुछ reality है. बिल्कुल तो बिल्कुल। how do you balance this? See, the thing is, जो फैक्ट है, फैक्ट को हम अंदर से ड्रामेटाइज नहीं करते, फैक्ट को जो फैक्ट है फैक्ट रहने देते, कैरेक्टर्स को लेके जो उनकी जो रिलेशनशिप की कहानी है, उसको हम लोग फिक्शनलाइज करके उसकी बिट्रेयल की कहानी हो, उसके रोमांस की कहानी हो, या उसके जेलसी की कहानी हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे हाथ में रहता है उसको क्रिएट करने का। उसको जब हम क्रिएट करते हैं तो फैक्ट एज इट इज रहता है, फैक्ट तो हम कुछ हिलाते नहीं है, बट ये जो बाकी कैरेक्टर्स का जो स्टोरी हम बोलेंगे ना, तो बैलेंसिंग करेक्ट जल्द हो जाता है उसके अंदर। Oh wow, fantastic. Or sir, just as a question, this is again my question to you, sir. If we are looking at building a show like Mukhbir, there is so much of already content on India-Pakistan wars, India-Pakistan conflicts. How is Mukhbir as a story from a character perspective of a spy different from other stories on India-Pakistan? See, बेसिकली देखिए, अभी भी क्या होता है, जब आप स्टोरी करते हो, बनाते जाते हो ना, बाद में लगता है यार इसमें और भी काम करना चाहिए था। इसमें इंटरेस्टिंग एंगल था कि एक आदमी को उठाते जो कॉनिंग करता है यहाँ पे, और उसको आप दूसरी कंट्री में आप भेजते हो, वही उसी का एक एंगल है, स्पाई बना के भेजते हो, पैसे की ग्रीड में चला जाता है। बट एक ऐसी फैमिली में प्लान की हो जहाँ पे वैल्यूज और ह्यूमन रिलेशनशिप और बहुत पॉजिटिव फैमिली है, जिस फैमिली के अंदर आपने प्लान किया है, वहां वो रह रहा है, राइट। उसने कभी वार्म फील नहीं मिला इस बंदे को, कभी वो सेंसिंग नहीं हुआ है कि फैमिली क्या होती है ना, कल्चर क्या, कुछ नहीं मालूम। उधर आप नकली काम कर रहे हो आप, तो उसकी सेल्फ के साथ क्वेश्चनिंग शुरू हो जाता है कि मैं हूं कौन, ठीक है। दैट इज द स्टोरी, सेंटर अपना सेंटर स्टोरी का वही है, सेल्फ के साथ क्वेश्चनिंग शुरू हो गया। नाउ एक कंट्री के लिए आपको स्पाइंग करना है, ह्यूमन लेवल पे मैनिपुलेट करना है, हाउ इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव ना। उस प्रोसेस में ही बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स द बेसिक कोर ऑफ द स्टोरी। Okay, sir, we have another question from Rajat. This question is, when casting was done for the show, was there anyone in mind for Harfan's role? No, not initially there was no one. कोई भी एक्टर, सिर्फ एक ही एक्टर दिमाग में था, प्रकाश राज। प्रकाश राज फॉर दैट कैरेक्टर हमारे दिमाग में इनके साथ करना है काम, क्योंकि वो हमेशा या नॉर्मल एक सिंपल आदमी का रोल कर रहा था इनसे, उसके अलावा कोई भी एक्टर दिमाग में नहीं था। नो वन। Sir, another follow-up question to this is, the last episode touches on the emotional aspect of being a spy. Right. Yet that right deep study and research is needed. What kind of efforts were put in to that end, as the end render is amazing? So that's another fan point, sir, from Rajat. So what do you think? तो आप बोल रहे, सवाल ये है कि लास्ट का जो एंड की पार्ट की कहानी है, देखिए क्या है, एक स्टोरी जो आलमगीर वाली जो कहानी एंड की तरफ आया है, उसको एक ट्रैक पूरा आप सेकंड सीजन में खुलेगा आगे, वो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन।
So you So will lots see of Alan stories Geer na. in the next season. Yeah, Okay. lots of stories, unsolved. जो questions arise हो रहा है ना, ये हाँ, सारी अब second season में जवाब आपको मिलेंगे. Wow, fantastic. Or sir, now coming to casting of the women play a very important role. I Right. think if you look at, I think एक तो इनका रोल जो जोया अफरोज का है, which is basically a reporter, media guy's daughter who's working in Pakistan. She is there. It looks like she's on the fringes, जो हैं वो Right. हैं, but that nothing actually materializes in relationship. Right. I think the real centerpiece of emotion, because if you look at emotions on the Pakistan side of things, Right. is the role of Begum Anar by Barkha. Right. Barkha Bisht, yeah. Barkha Bisht. And somehow it reminds you of the old legends of Noor Jahan or people in the 1960s. Yeah. And and then it looks like a tragic love story from all sides. She plays a tragic character. But was it needed to be part of the story of a spy? Something like this, so profound. तो बेसिक जो जम्स है स्टोरी का ना, एक बुक था, मिशन टू पाकिस्तान, दे गॉट द राइट्स, उसमें ये इस कैरेक्टर का मेंशन किया हुआ था. और उस समय शी वाज नॉट ए सिंगर, शी वाज समवन एल्स. और हमें लगा कि यार सॉन्ग स्टोरी में हम इरा में जाते हैं ना, एक लिरिक्स जो है सॉन्ग एक माहौल बना सकता है. दैट्स वे उसको सिंगर बनाया हम लोगों ने. और क्योंकि सॉन्ग आप एक फील देता है ना सॉन्ग, तो दैट गॉट की यार ये स्टोरी है, लव स्टोरी है, एक बंदी शी इज गोइंग टू बी विक्टिम ना, द स्टोरी. तो उसको तो वो आर्टिस्ट ने उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं. शी लव्स आर्ट, ह्यूमैनिटी, उसकी जर्नी है वो. And sir, another question from Paritosh is about the film. How did Shivam sir and his team master such an emotionally moving soundtrack? The songs, we have all fallen in love with the soundtrack. Thankfully, it's available on Spotify, and it's quite. This brings a whole soul to this entire thing, Yeah, I will tell you, that's because Vaibhav Modi हमारे producer हैं. He is a very good lyric writer. उसका सेंस बहुत अच्छा है म्यूजिक का. और उसका जो टीम है, जो कंपोजर है अभिजीत, तो वो उनकी जो लिखी हुई, जिस दिन गाना कंपोज हुआ तब मैंने बोला कि वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हमारी पूरी सीरीज का है, दैट्स अ सॉन्ग. अब हमेशा बोलता हूँ क्योंकि वो सॉन्ग बहुत पहले रिकॉर्ड हो गया था, मतलब शूट के पहले, शूट के आसपास ही रिकॉर्ड हुआ था. जब मैंने सुना, बोला ये जो फील होता है ना, ये फीलिंग अगर हमारी सीरीज क्रिएट करा उसके आसपास, हम बच के निकल गए. तो आई एम डूइंग इट फॉर दैट इमोशन, दैट इरा, दैट फीलिंग. वो सो गुड इनटू दैट. और जब भी मैं सुनता हूँ तो वो इरा में ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ. I think, sir, please, sir, finish your thought. That's Vaibhav Modi. I will give the credit to him. For the soundtrack. बिल्कुल. Sir, and the book's name is Mission to Pakistan by Malay. Let me just, I think Mission to Pakistan, sir. But I think, sir, एक और चीज हुई है, because what I've seen is ये जो literature के साथ अब films का relationship बनना शुरू हुआ है. Because Hollywood तो पूरा का पूरा is built on this construct. Correct. Every big story you see is based on a book or on an article or on a comic book strip or something like that. And do you think this pattern will move forward now? 100%. देखिए क्या होता है ना, एक सोर्स मटेरियल आपको मिलता है. हमने भी ये किया, बुक का हमने आज चीज फॉलो नहीं किया. हम लोगों ने बुक का सोर्स मटेरियल हमने लिया, उसमें फैक्ट हमने उसमें लिखा हुआ तो फैक्ट लिया. फिर हम लोग ने राइटिंग में, क्योंकि आज इट इज आप करोगे ना, बहुत कम बुक्स होगा जो आज इट इज करोगे तो वर्क करेगा. उसको आपको वेब सीरीज या फिल्म के लिए अलग से लिखना पड़ता है, हॉलीवुड वाले करते हैं. तो उसका सेंटर थीम, कोर स्टोरी पता चलता है हमको, कैरेक्टर्स मिलते हैं, फिर आपका थॉट प्रोसेस से फिर उसको बिल्ड करते हैं. तो अदरवाइज क्या होता है ना कि वी डोंट नो, जिस स्टोरी पे हम बना रहे हैं पूरा बिल्डिंग, बेस सही है कि नहीं सही, वी डोंट नो. तो नोवेल सपोर्ट्स दैट. That's great. Superb. And sir, one more thing to basically sum up. I think shows like this are actually, the problem is we are now bombarded with so many OTT platforms. Yeah. ये तो by the way एक आपके Amazon Fire Stick अगर आप यूज करते हैं, या आप कोई बेसिक एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पर मुखबिर has flashed. And because it has a relatively unknown cast, people don't know about it. But I think it's really catching up, and we are seeing now filtering
of content amongst the OTT platforms. Right. क्योंकि अब वो धक्का टाइप कि बैंड वैगन में इतने सारे आ गए शो, आप देख लो सारे एक जैसे लगते हैं दिखने में. So बिल्कुल. there will be a Mirzapur, then there will be 20 mini Yeah, yeah. Mirzapurs, So Right. I think this is where I think this is really touched raw nerve with a lot of people. And sir, many thanks for your time, sir. Thank you. For interacting with Filmy Bania, our little channel. Thank you so much, Shibam sir. This was Thank such you. an enlightening discussion, and I think the key to this show is pure content. It is something which is shot something very beautifully. And sir, before I forget, one thing which I wanted to ask you was the locations, the production design. I mean, how did you create a Pakistan? I'm sure you didn't go to So those people, or, two more important people. One is Ravi Srivastava who has done the production design. yes, और बहुत अच्छा काम किया. बजट हमारे पास था नहीं, बट हमने काफी, जयप्रद जो हमारे को डायरेक्टर है, उसने भी काफी मेहनत की लोकेशन सर्च करने में. शूट किया, हमने शूट किया अमृतसर, शूट किया पटियाला, शूट किया बॉम्बे, शूट किया हम लोगों ने. उसका हम लोगों ने मनाली शूट किया. उसकी जो ब्यूटी है ना, जो कैमरामैन एक बाहर से आए हैं, डीमो नाम है उनका, और रवि श्रीवास्तव, ये दोनों की जो टीम है ना, दे अभी मेरी फिल्म में ये दोनों साथ में दे आर डूइंग इट. तो क्या है, दे आर वेरी गुड देयर वर्क. तो आई थिंक, मुझे क्या लगता है, इट्स लकी हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, सारी टीम आ जाते हैं और बहुत ऑनेस्टी के साथ, वही स्पिरिट के साथ काम करते हैं, उसका आउटकम है मुझे. So sir, we have one more last question as we are signing off. Who's the character who plays the ISI ruthless agent? Dilip Shankar. Who ISI? ISI agent with the specs who kills in Badami Bagh. Dilip Shankar. He is a casting director from Delhi. He international फिल्मों में casting करता है. We have given the role, और I think he has done a great job. What's his name? His name Dilip Shankar. Dilip Shankar. Yeah. I mean, he looks like a raw Pakistani Punjabi. The way he was talking, and actually, so that's another part. Pakistan was in a very different economical trajectory back then. India was different. Yeah. But anyway, thank you so much, sir, and thank you for your time, sir.